क्या करना है अटेम्प्ट बचा के? व्हाट विल यू डू आफ्टर सेविंग इट? और सर अभी जैसे फिफ्थ अटेम्प्ट था मेरा, बट ऐसा नहीं था कि आई वॉज 100% श्योर कि हो जाएगा या मेरा परफेक्ट अटेम्प्ट था। वो परफेक्ट अटेम्प्ट एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी तैयारी कभी खत्म होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो हम्म। थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा डर तो हमेशा ही रहेगा। तो अटेम्प्ट, मेरा तो यही मानना है कि आप अटेम्प्ट दो एंड यू विल इम्प्रूव। थोड़ा सा एक फाउंडेशन बनाने के लिए आप भले 1 साल पहले ले लो, बट आफ्टर दैट स्टार्ट अटेम्प्टिंग। So, hi guys, today we have Mukund with us who has scored rank 273 in this exam, and Mukund is our student and we were connected since almost a year or more, so to say. So, Mukund, batao, tell us something about yourself, from where you've done your graduation, a broad idea of your UPSC journey. तो जैसा आपने बताया, मेरा नाम मुकुंद सिंह चाहर है। इस साल मेरी 273rd रैंक है यूपीएससी में। मैं भोपाल से हूँ Mukund, you can स्कूल। speak in English also because South Indian audience ओके will ओके say सर। कि come तो on sir, हमको समझ में नहीं आ रहा. ठीक है सर, नो इश्यूज। सो आई डन माई स्कूलिंग फ्रॉम भोपाल, आई बिलोंग फ्रॉम भोपाल। आफ्टर दैट आई went to Delhi University, DAV College, where I did history honors. And since third year of history honors, I've been preparing for UPSC. So it's almost been 6 years now. In my third year, I did a foundation course in Delhi itself. After that, I came back to Bhopal, and then I've been preparing from home since then. तो बाकी So तो सर हॉबीज वगैरह है, काफी कुछ है बताने को तो, बट So यही है it बस। has been a long journey. It's not a some कि 2-3 साल में या फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, वैसा तो नहीं है. It's not a very yeah, you've just cleared, you came and you've just cleared. It's not that. But because you started very early, so hence you have that advantage of early start and clicking it, in your mid 25, 27 around. So that is there. So what is your take on this कि लोगों को जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के जस्ट बाद? Sir, I think there are both pros and cons to it. The big con would be that I was underprepared in my first attempt. Yeah, in fact, in my initial two attempts. And the issue is that UPSC cycle does not allow you to make rectifications that easily. So if you have entered it without much preparation, you will have difficulty in creating that foundation. So that is a big con. The pro is that, again, as you said, this was my fifth attempt, but I'm still 25 years old only. So for many people it would have been their first or second attempt at this age. So basically it is your call whether you want to prepare properly and then get into the preparation and try to finish it in one or two attempts, or you can take my approach as well. Actually, obviously, it will depend person to person situations because there are different constraints for everybody. But still, one thing is clear: कि early start will help. There is no doubt about that. हाँ, इसमें And तो कोई डाउट नहीं। 6 attempts are a lot. 6 attempt तो बहुत होते हैं, क्यों देखा जाए तो. जी सर, बिल्कुल। एक्चुअली I've seen people close up front who have said कि I want to save my attempts, but the thing is people don't realize that they are not saving their age. So they are skipping attempts. They are waiting for that perfect attempt, which would never occur. Because Not even in my some fifth pressure attempt, to be हाँ kept बिल्कुल। with you only. क्या करना है attempt बचा के? What will you do after saving it? और सर अभी जैसे फिफ्थ अटेम्प्ट था मेरा, बट ऐसा नहीं था कि आई वॉज 100% श्योर कि हो जाएगा या मेरा परफेक्ट अटेम्प्ट था। वो परफेक्ट अटेम्प्ट एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी तैयारी कभी खत्म होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो Hmm. थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ा सा डर तो हमेशा ही रहेगा। तो अटेम्प्ट, मेरा तो यही मानना है कि आप अटेम्प्ट दो एंड यू विल इम्प्रूव। थोड़ा सा एक फाउंडेशन बनाने के लिए आप भले 1 साल पहले ले लो, बट आफ्टर दैट स्टार्ट अटेम्प्टिंग। So the major difference which people feel from uh, their schooling or graduation is, in schooling and graduation we can have the feeling of completeness, as of you've done the syllabus, these are the books. But in UPSC there is no end to resource information, no end to information assimilation, gathering, no end to analysis. So hence the exam poses those challenges. जो बच्चे ने मतलब kids have not faced all of that in their schooling, and all of a sudden comes an exam जिसमें सब कुछ टेस्ट होगा at 3 stages. So hence it's a very comprehensive exam, and I guess that is the most biggest hurdle. What do you think? जी सर, बिल्कुल। इसमें तो कुछ ऐसा दो राय है नहीं। सिलेबस काफी वास्ट है और आपको
हर सब्जेक्ट की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। ये एक मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं कि मोटी मोटी हम्म। किताबें लेके बैठ जाएंगे, परफेक्शन ढूंढेंगे। तो वो जो आप बोल रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में वो फीलिंग आती है कि यू हैव परफेक्टेड द सिलेबस, दैट वुडंट अकर इन यूपीएससी। योर जॉब इज टू be able to identify the subjects which have a good weightage and then master them to certain extent। और फिर बाकी तो ये प्री के एक स्ट्रैटेजी बनाओ अच्छे से, उसको क्लियर करो। फिर मेंस का फिर भी एक आई वुड से कि थोड़ा सा कंप्लीशन का फीलिंग आता है, बिकॉज द सिलेबस इज क्वाइट क्लियरली डिटेल्ड। सो एटलीस्ट यू कैन हैव दैट फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैंने सारे कीवर्ड्स तो कवर किए हुए हैं। बट स्टिल वहां पे भी चीजें थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। And in 2013 के बाद, in 2013 they made the GS syllabus very detailed and they added all the major keywords which are quite indicative, मतलब you can understand कि क्या तैयारी करनी। तो hence मेन सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल भी तो है मुकुंद। बिल्कुल मेंस में सर। you have the maximum control। सबसे ज्यादा सर इनपुट और आउटपुट का अगर आप देखोगे बैलेंस, तो वो मेंस में है। प्री में ऐसा है कि आप बहुत मेहनत करो। आप अब जैसे आप टॉपर्स को भी देखेंगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि एक एक दो दो नंबर से उनका प्री क्लियर होता है। कई बार हम्म। मैंने मार्कशीट्स में देखा है। तो उसका रीजन यही बिल्कुल। है कि नोबडी, मतलब प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट हैंडलिंग प्रेशर एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट लक। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स है। मेंस में जैसे आपने बोला, इफ यू वर्कड हार्ड यू स्कोर वेल। ऐसा नहीं हालांकि कि एग्जैक्ट आपको आउटपुट दिखेगा। फॉर प्रपोर्शन। एग्जाम्पल, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर जीएस दिस ईयर, बट उतना क्लियर कट प्रोपोर्शन नहीं है, ऑप्शनल में भी नहीं आया। बट कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मेरा एसए में स्कोर थोड़ा इंप्रूव हुआ, तो कहीं ना कहीं आउटपुट दिखेगा मेंस में, इतना तो तय है। लोगों को नहीं पता कि ऐसे के स्कोर के लिए मुकुंद ने अपन ने बहुत भी बहुत डिस्कशंस किए, तुमने कहीं बाहर भी और दो तीन चार जगह भी और, मतलब ऐसे वाज योर बिग हर्डल इज व्हाट आई अज्यूम, और तुम 10 जगह सोच रहे थे यार ऐसे में क्यों नहीं हो रहा। सर ऐसे यू ट्राइड एक्चुअली हार्ड। सबका कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो माई फीलिंग वाज दैट आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट एसे, एंड आई शुड बी गुड एट एथिक्स। तो एथिक्स की मिस्ट्री तो अभी तक मैं नहीं सॉल्व कर पाया। बट ऐसे का एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे सेटिस्फेक्शन है कि स्कोर इंप्रूव हुआ है, ऐसे डिस्पाइट में द तो फैक्ट कि अटेम्प्ट से मैं खुश नहीं था। अटेम्प्ट थोड़ा बिगड़ गया था टाइम मैनेजमेंट वाइज। बट स्टिल स्कोर से आई एम सेटिस्फाइड। तो वही मिडलिंग स्कोर आ रहा था ऐसे में। ऐसा नहीं था कि कम नंबर आ रहे थे, पर हम्म। मिडलिंग स्कोर हमारा है। जब मुझे इंजॉय में लिखने में मुझे मजा आ रहा है, लोग फीडबैक दे रहे हैं कि अच्छा लिख रहे हो, तो नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो गया था बस। बट अच्छा, डोंट यू थिंक ये जो मेंस में आजकल चल रहा है कि यू इवैल्यूएट, मतलब पीपल आर इवैल्यूएटिंग द कॉपीज एंड देन दैट एनालिसिस इज गोइंग, इजंट इट टू मच? व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस? हाँ सर, कभी कभी इट गेट्स टू मच। यू कैन ओवर एनालाइज थिंग्स, जैसे कि आपने कहा। सो लकीली फॉर मी आई हैड टू मेंटर्स। वन ऑफ देम वाज into the analysis part, and when I discussed with you, we had that conversation which usually used to relax me. I felt कि ठीक है भैया, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेकार लिख रहा हूँ, क्योंकि आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, राइट? एंड देन आई एम गेटिंग फीडबैक कि ये ऐसे में आपने यहाँ पे ठीक नहीं किया चीज, वहां ठीक नहीं किया चीज। तो दैट अफेक्ट्स योर मोरल। सो इफ यू देन टॉक टू समवन एल्स हु सेज कि अरे तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है, इसमें इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, तो यू काइंड ऑफ फील कि ठीक है, एटलीस्ट हार्डवर्क का कुछ तो आउटपुट आ रहा है। तो वो बैलेंस होना जरूरी है एनालिसिस और रिलैक्स करने का। No, so from my experience of advocacy, कभी कोई constitutional bench है and like best of the best seniors are arguing, कभी भी किसी के भी communication में, whether it's a content piece, whether it's a speech, आप अगर पोस्ट एनालिसिस करने लग जाओ ना, तो आप हर इंसान के उस के अंदर आप कमी निकाल सकते हो। बेसिकली सी बिल्कुल। राइटिंग मेंस इज आल्सो अ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड एग्जामिनर। यू आर गिविंग योर ओन बिल्कुल। ओपिनियन थ्रू अ कंटेंट पीस व्हिच इज इन रिटन फॉर्मेट। अब कोई पोस्ट एनालिसिस करने लग जाए, आपने क्या सोच के क्या लिखा है, जो एनालिसिस कर रहा है वो क्या सोच के क्या बता रहा है, तो plus there might be a situation wherein the examiner is thinking something else and predicting and analyzing your answer from some third perspective. So also Mukund, one more thing: the more the years you have seen in your life, the more you read you are, well-read person you are, the more perspectives you will have, right? You might be writing with a particular horizon, and somebody with a far wider horizon checking that copy, so the perspectives will change. Hence I always say that unnecessary over analysis by somebody in critically एक एक लाइन की बारीक निकाल निकाल के उसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। मतलब
you'll get lost. You'll get lost in the trap of too much of analysis and data interpretations. उसमें बिल्कुल कुछ सर, बैठेगा नहीं. नहीं बैठेगा सर। और इनफैक्ट आप ऐसे के भी वेरिएशन स्कोर इस साल देखो स्कोर्स के, तो 60 से लेके 150 तक का है। तो दैट इंडिकेट्स क्या, जो आपका परसेप्शन वाला पॉइंट है कि सबका लिखने का परसेप्शन और चेकर का चेक करने का परसेप्शन में काफी डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि स्टिक टू योर ओन परसेप्शन एंड वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स, और दिल से लिखो। ज्यादा बहुत ज्यादा दिमाग लगा के भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाँ, मतलब चंडीगढ़ दो। ultimately you have to, as you said, दिल से लिखो. तो ultimately you have to inherently develop those qualities, and they should get reflected in your writing. You have to keep things बिल्कुल simple. बिल्कुल। Or even artificial intelligence has failed to completely translate. Cryptic translation हो जाता है, but when it goes deeper, when there has to be a narrative about it, and in what context what was said. Complete translation में आज तक भी translation softwares perfection नहीं ला पाए. There has been great progression, but still there is that gap. So obviously, any written content can mean a lot of things. On interpretation, हमारी दुनिया तो चलती interpretation पे है for lawyers word. So cases होते ही रहते हैं. तो it is tough. It's not that easy. So that is the बिल्कुल hurdle सर। which mains kind of pose in front of all the students, and you have to keep things very very simple. One जी more सर। thing, you tell us, when it comes to mains analysis and writing mains, if you have too many rules to follow in writing something, you will get lost again. Coming to this point, I was actually taking an answer writing seminar recently. तो one of my students said कि सर कई सारे keywords होते हैं जो क्वेश्चन में होता है ना, क्रिटिकली एनालाइज, एलैबोरेट और ऐसे 25 वो होते हैं। तो सर अलग अलग का क्या मीनिंग है और उसको कैसे डील करना है? तो मैंने बोला कि सर मुझे अलग अलग का मीनिंग पता है, पर सच्चाई ये है कि जब मैं मेंस के वहां पे उसमें लिखने बैठता था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि उन 10 का मैं अलग से असेस करके फिर उस हिसाब से आंसर लिखूं। तो मैंने दो चीजें सोच रखी थी, अगर क्रिटिकली एनालाइज है तो मैं काउंटर भी लिख दूंगा, अगर एलैबोरेट है या इस टाइप का डिस्कस वाला क्वेश्चन है तो उसमें बेसिकली फिर मैं फॉर द मोशन बोलने की कोशिश ज्यादा करूंगा, लिखने की कोशिश करूंगा। तो रूल्स विल हेल्प यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि आपका टाइम जितना बचे मेंस में वो उतना बेहतर। तो आपके दिमाग में अगर क्लियर कट है कि मैं इंट्रो 2 लाइन का लिखूंगा, कंक्लूजन 2 लाइन का लिखूंगा, बॉडी लिखूंगा, तो वो आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक हेल्प करेगा। बट एज यू सेड, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपके रूल्स बिल्कुल तोड़ दिए जाएंगे। यूपीएससी ने कुछ ऐसा पूछा होगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो वहां पे फिर आपको थोड़ा चिल आउट करना भी जरूरी है कि ठीक है, यहाँ पे मुझे नॉलेज ओवर आउट करनी है, उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में नहीं, उस पर्टिकुलर रूल के हिसाब से नहीं जो मैं बना के आया था, पेपर की डिमांड के हिसाब से। हाँ, तो रूल में भी what you did was a simple distinction. कि इस तरह के keywords I'll simply explain and elucidate, and इस तरह के keywords, a particular type of keywords, you will give a counter also. So it was a very simple application is what I'm saying. जैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल clumsy करोगे, इसमें ऐसे करना है उसमें ऐसे करना है, तो you will get confused. बिल्कुल, तो अग्रीड सर। and you used AI, chat GPT का यूज किया? इंटरव्यू में किया, क्योंकि इंटरव्यू में जैसे आपको पता है स्कोर 135 था पिछली बार। तो इस बार मुझसे जो करते बना मैंने इंटरव्यू में किया है, और काफी टाइम भी मिल गया था, 6 महीने का। तो चैट जीपीटी का डैफ रिसर्च में मेरा थोड़ा काम आई। बाकी अगेन जेनेरिक आंसर्स रहते हैं, ऐसा एकदम परफेक्ट आंसर तो नहीं मिलते, बट यू कैन देन एनरिच देम, यू कैन रिसर्च फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। सो इट हैज इट्स यूटिलिटी, आई विल नॉट डिनाई दैट। It has its utility, but you can't depend on it. बिल्कुल, करना तो आपको खुद ही पड़ेगा थोड़ा। खुद की स्मार्टनेस तो चाहिए ही. बिल्कुल What about current affairs? Current affairs को कैसे करते थे तुम? सर, टू बी ऑनेस्ट, मैंने सुना है कई लोगों के कि वो शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं प्री मेंस के लिए भी। फिर कई लोग एनालिसिस करके दिखा देते हैं यूट्यूब के कि न्यूज़पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में। बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज एस्पिरेंट हैज बीन कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपना इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, बट प्री के क्वेश्चन आप न्यूज़पेपर से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि यू विल हैव टू रिवाइज योर मटेरियल एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स टू हैव अ चांस ऑफ एलिमिनेटिंग अ स्टेटमेंट इन प्रीलिम्स। आपको याद होनी चाहिए चीजें काफी फैक्चुअली, जो है एग्जैक्ट आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं प्री और मेंस के लिए कोचिंग का कंपाइल मटेरियल पढ़ता था। फॉर इंटरव्यू दिस टाइम हाउएवर आई हैड सब्सक्राइब टू 2 न्यूज़पेपर्स। तो दोनों के न्यूज़पेपर्स के थोड़े व्यू पॉइंट अलग थे। एक थोड़ा मेन स्ट्रीम न्यूज कवर करता था, एक थोड़ा एलिट न्यूज कवर करता था। तो
दैट अलाउड मी टू हैव ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स. बट शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ना इज समथिंग दैट, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है न्यूज पढ़ने में, आपको अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, तो आधा एक घंटा आप उसे दें. पर वो 3-3-4 घंटे जो आप शुरू से देते हैं न्यूज़पेपर का, वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा किसी को. नहीं तो बट सी अगेन, वन साइज फिट फॉर्मूला नहीं है. you your skills were already there of good writing, good capacity, good communication, so hence you can skip that part, directly come to the information assimilation. But बिल्कुल. newspaper बीच बीच में you also used to do, right? अब सर, या टू बी completely ऑनेस्ट, नहीं? इंटरव्यू के बाद ही पढ़ा है मैंने. हालांकि इंटरव्यू के बाद. ऑब्वियसली इसका एक डिसएडवांटेज है कि फिर मुझे अवेयरनेस बिल्ड करने में काफी टाइम लगा, क्योंकि मैंने वही हम्म. कंपाइल्ड मटेरियल पढ़ा करंट अफेयर्स, तो वो उस तरीके का रहता है. बट मेन स्ट्रीम न्यूज जैसे कि पॉलिटिकल अरीना में क्या हो रहा है, ये तो विजन हाँ, वो नहीं कवर होगा. मंथली कंपाइलेशन नहीं कवर करेगा. राइट. तो वो एक डिसएडवांटेज है डेफिनेटली. तो जैसे आप कह रहे हैं, 1 घंटा आप दे सकते हैं न्यूज़पेपर को अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपनी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए. बट फिर वही है, उसे प्री ओरिएंटेशन से ना पढ़ें, क्योंकि हाँ, मतलब उसमें इट शुड मेरे बी हिसाब मोर से फॉर उतना वो नहीं मेंस. है. हाँ, फॉर मेंस एंड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट. मेंस एंड स्किलिंग बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन, कहीं बिल्कुल से इंट्रोडक्शन का स्टार्ट मिल रहा है, कोई कोड, कोई केस स्टडी. बेसिकली मेंस. अगर प्री करना है तो प्री के लिए इंडेक्स विंडेक्स बना के कुछ पिक करके खुद से सर्च करना पड़ेगा. और इतना करने की बजाय व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज यार यू कैन डू द कंपाइलेशन. बिल्कुल. बट कई लोगों को व्हाट आई हैव सीन इज, कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, वो डायरेक्टली कंपाइलेशन पढ़ते हैं ना, तो उनको वो उतना रिटेंशन नहीं रहता, हाँ, एंड ये भी हो दे सकता है. गेट लॉस्ट इन द कंपाइलेशन. और कई लोग जब न्यूज़पेपर के बाद कंपाइलेशन पे आते हैं, तो व्हाट द डिफरेंस कम्स इन इज दैट दे हैव फार बेटर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो ओरिजिनल सोर्स से देखा हुआ होता है. वहां जी. से याद नहीं हो सकता एज यू सेड, बिकॉज वहां से डायरेक्ट न्यूज़पेपर से याद नहीं हो सकता. यू हैव टू वर्क अपॉन इट. उस पर कुछ या तो खुद से काम करना पड़ेगा, and then that will have, as you just said, ki that will have its own advantage and disadvantage in terms of time consumption, कि कितना टाइम चला गया, लॉस भी हो सकता है, मतलब because you have to बिल्कुल. balance that. वो भी एक प्रॉब्लम है. बट हाँ सर, तो जैसा आपने कहा, वन साइज फिट ऑल वही नहीं होता है सबके लिए. नहीं है, तो नहीं जैसे है. मेरी पर्सनल जो क्वालिटीज थी, जो स्किल्स थी, उस हिसाब से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई. तो डेफिनेटली सबको अपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, इश्यूज भी और क्वालिटीज भी. तो didn't you feel कि यार because you've done graduation and you jumped in the preparation, तो कभी ऐसा नहीं लगा यार कोई आईआईटी नीट प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते, it would have been better at some point, some stage of your preparation? सर, आईआईटी का तो कभी इसलिए नहीं लगा क्योंकि 12th तक मैंने पीसीएम किया हुआ है, स्कोर भी मेरा अच्छा था. बट आई एब्सोल्युटली हेटेड मैथ्स. मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी करूंगा लाइफ में, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा. तो वो तो पॉइंट ही चला गया था. और बाकी इन जनरल मेरा ये था कि अगर मेरे को जॉब करनी थी तो मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना था. बाकी नहीं तो फिर आई वुड हैव डन एंटरप्रेन्योरशिप. तो उस टाइप का मेरा प्लान था. तो प्रोफेशनल कोर्स का कभी इतना कमी नहीं लगी. ये जरूर लगता था कि थोड़ा टाइम जा रहा है, काफी टाइम चला गया है यूपीएससी में. तो वो तो हल्की सी एंजाइटी या रिग्रेट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, वो एक थॉट था माइंड में The कि highs and lows. बिल्कुल हाइज एंड लोज. तो कोई और एग्जाम्स ट्राई किए फिर जर्नी में जब फेलियर्स मिले या? शुरू में किए सर, मैंने उल्टा किया. जनरली लोग शुरू में यूपीएससी को ध्यान देते हैं, फिर हाथ पैर मारते हैं. मैंने शुरू से ही, ये मेरी मिस्टेक थी और ये मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई ना करे. मैंने यूपीएससी दिया, मैंने मध्य प्रदेश पीएससी दिया, मैंने उत्तर प्रदेश पीएससी दिया, मैंने एसएससी दिया, मैंने नाबार्ड ग्रेड ए दिया. किसी में भी मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ. एसएससी का टीयर 1 हम्म. हो गया था क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक थी, पर उसमें भी मैथ्स बहुत ज्यादा आता था टीयर 2 में. तो वो भी हम्म. कभी क्लियर नहीं हुआ. तो और वो 2 साल क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स ट्राई किए, तो यूपीएससी में प्री भी क्लियर नहीं हो रहा था. तो फिर थर्ड ईयर में मैंने सोचा कि अब मैं एमपीपीएससी पे फोकस करूंगा. और यूपीएससी मेरे बस की है नहीं मोस्ट प्रोबब्ली. फिर जनवरी में दिया एमपीपीएससी. उस साल भी नहीं हुआ एमपीपीएससी. पर कट ऑफ के 8 या 10 नंबर पीछे था मैं. तो आई फेल्ट कि चलो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, करीब ही है हम हम्म. तो. और मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि प्री अगर क्लियर हो गया तो एमपीपीएससी में मैं शायद मेंस भी एक बार में ही निकाल दूं, इंटरव्यू भी निकाल दूं. फिर कोविड जो है आ गया 2020 में. अब यूपीएससी का एग्जाम खिसक गया और एमपीपीएससी हाई कोर्ट में अटक गया, वो उस साल का एग्जाम. तो फिर आई फेल्ट कि अब तो यूपीएससी इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, दे लेते हैं थर्ड थर्ड ईयर भी. तो दिया, तो उस साल लकीली प्री क्लियर हो गया. तो उसके बाद फिर मैं यूपीएससी में ही लगा रहा. फिर मैंने किसी और एग्जाम को नहीं तो टच किया बेसिकली फिर. यू फेस्ड almost 2.5 3 years
2 or 3 failures in pre, in MPPSC, in SSC, NABARD, and you remain तब tough कम and you again. So rising up again is the mantra, and हाँ सर that gets बिल्कुल। exemplified from the way you have done it. वो बिल्कुल कोविड था या मतलब जो भी था, but it triggered that response from you. कोविड में तुम और परेशान भी तो हो सकते थे कि ओ माय गॉड अब तो और गए। आप परेशान तो हुए थे, एक दो महीने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि ऑब्वियसली सब थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस थी, सबको एंजाइटी थी। बट उस टाइम तो मेंटल हेल्थ पे ही फोकस किया, एंजॉय किया, एक शॉर्ट फिल्म बनाई बढ़िया। बट उसके बाद फिर लगा कि टाइम है तो यूपीएससी प्रिपेयर कर लेते हैं। और जैसे आपने कहा 3 साल कंप्लीट एकदम रिजेक्शन, तो जैसे लोगों को लगता था कि ट्वेल्थ में अच्छे नंबर है, टेंथ में अच्छे नंबर है, होशियार है, और अब तो क्या वो हो रहा सारी होशियारी उधर ही की धरी रह गई। है? कई लोग मेरे मुंह पे ये बोल के गए कि मे बी यू नॉट दैट इंटेलिजेंट कि आप यूपीएससी दो। एंड अगेन मैं उनके प्रति भी ग्रज नहीं होल्ड करूंगा, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई बंदा 3 साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयार कर हाँ, रहा है, राइट। कुछ भी उसका नहीं हो रहा है, तो दे मतलब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही है। आई कांट रियली होल्ड एनी ग्रजेस टुवर्ड्स देम। ग्रेट। सो ये भी एक है, जब भी लोज आएंगे एंड पीपल अराउंड यू माइट आल्सो स्टार्ट डाउटिंग यू in any struggle, in any exam, or in general in life, you should take that uh, kind of a critical evaluation of yours, which you're not even asking, or sometimes people are giving unsolicited advices. That too should be taken with a smile. You should not take it हाँ too seriously. जी सर बिल्कुल। मतलब एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ एनालिसिस। मुझे अब जैसे हो सकता है इस साल मेरा रिजल्ट नहीं क्लियर होता, बहुत क्योंकि बहुत लक का फैक्टर रहता है। मेरा कट ऑफ 12 नंबर से क्लियर हुआ है, 12 नंबर से मिस हो सकता था। बट मुझे एज ए पर्सन पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने कितना इम्प्रूव किया है पाँच And साल this में। time your तो efforts were there. जी, Sincere efforts तो were there. मेरा सेल्फ असेसमेंट मुझे पता है। अब लोगों को लग रहा है कि इसने मेहनत की है, एकदम से रियलाइज हो रहा है कि की है, पहले लग रहा था कि नहीं की है। तो वो तो चेंजेस होते रहेंगे, उसका आप कुछ ज्यादा कंट्रोल कर नहीं सकते। आप खुद का ऑनेस्ट असेसमेंट करो और उसके हिसाब से चलो, तो वो बेटर रहता है फिर। People might go around with your success and failure, but there is a lot behind that जो लोगों को बिल्कुल सर। पता भी नहीं होता। वो तो आपको नहीं ही पता एनालाइज होता। करना है। यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि वेयर आर यू स्टैंडिंग एंड what all is was going around, and that you only have to analyze. True. But that's a बिल्कुल सर। great message for all the aspirants from your journey. You see 3 years unsuccessful in almost 5 6 exams, and then coming out, and then rather COVID coming, और हाँ COVID के बाद भी not bowing down to the circumstances, rather taking that in your stride कि अच्छा भैया एग्जाम तो यही देना है, वापस से देते हैं। That's a great response. Otherwise तुम उस मोमेंट पे अगर गलत सोच लेते या हताश हो जाते तो you would not have been here where you are. बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। No, अच्छा, another thing, लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि that means कि you should just keep trying and dragging your journey, because practical aspect of it is, as you also बिल्कुल। said, कि there should be some plan A plus B D whatever. There should be some backup. मेरा बैकअप सर तैयार ही था इस साल, बिल्कुल कंप्लीट। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि भगवान सोच ही रहे थे कि इसका बैकअप तैयार हो जाए अच्छे से परफेक्ट, फिर मैं इसको जो ये एक्चुअली चाहता है वो दूंगा, तब दूंगा। क्योंकि और जैसे आपने बोला प्रैक्टिकलिटी बहुत मेंटेन करना जरूरी है, स्पेशली इन एन एग्जाम विच इज सो अनप्रिडिक्टेबल। हम्म। यूपीएससी में सक्सेस रेट इतना कम है कि कई बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स का भी नहीं होता है नहीं सिलेक्शन, होता, दैट right? इज द ट्रूथ। ठीक है। तो अ, हो सकता है मेहनत करो, अगर आपका लक साथ ना दे तो आपका नहीं हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना पोटेंशियल वेस्ट ना करो एक ही एग्जाम में। अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्विसेज ही वो चीज ऑफर करेगी। देर आर मल्टीपल वेज टू गेट दैट। तो एक फिक्स टाइम दीजिए। अब जैसे मैंने तो सोचा था कि मैं 6 के 6 अटेम्प्ट दूंगा, शुरू मैंने जल्दी कर दिया था। तो आई फेल्ट कि 26 से भी अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो You can. चल जाएगा काम, आई कैन डू दैट। ठीक है। तो दैट वाज माय पर्सनल डिसीजन। आप अपना पर्सनल डिसीजन लें, जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, बेसिकली वो जो बेस्ड ऑन जिसको दैट। तुम पर्सनल डिसीजन बोल रहे हो, सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, वो रिस्क जी असेसमेंट है जी खुद का। वो खुद बिल्कुल को खुद बिल्कुल। ही करना होगा और इसका कोई इलाज उसको नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं है, बट ये एक्नॉलेज करना जरूरी है कि यूपीएससी इज एन अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम एंड यू विल हैव टू प्लान फॉर अ बैकअप। उसमें कोई डाउट नहीं What about choosing optional? Because sometimes in such a tight competition, कई options की पिटाई चल रही होती है। Sometimes मतलब that's what has been the trend. So सर। how to choose the optional?
ऑप्शनल को लेके मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहा, मुझे हिस्ट्री पसंद था पढ़ना। सीधी सी बात है सर, ऑप्शनल में सिलेबस रिलेटिवली आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा व्हेन लेट्स कंपेयर टू जीएस और एसए और Yes, yes, व्हाटएवर। obviously. तो जब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंटरेस्ट मेरा हिस्ट्री में था, एंजॉय रीडिंग हिस्ट्री, मैंने डिग्री भी हिस्ट्री में की थी। तो पहले मेंस में मेरे 205 नंबर थे हिस्ट्री में, तो बहुत कम स्कोर था। बट मैं, लोगों ने सजेस्ट किया कि हिस्ट्री चेंज कर लो। बट फिर मैं ये सोच रहा था कि मैंने हिस्ट्री का सिलेबस इतनी मुश्किल से कवर किया है, मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। अब मैं बाई चांस So, ज्योग्राफी या कुछ भी करूँ तो वो कैसे होगा, मुझसे होगा ही नहीं। और इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में। तो ऑप्शनल चूज करने के आई थिंक 2 या 3 पैरामीटर अगर मुझे रिकमेंड करने हो, तो पहला ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा। दूसरा होगा कि सोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं कि नहीं ठीक ठाक, क्योंकि वो ढूंढने में इशू ना है। अगर फिक्स सोर्सेज हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसको पिक करो, फिर बाकी चीजों को असेस मत करो। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं ना, ऑप्शनल की पिटाई असेस करना बड़ा मुश्किल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस साल किसकी पिटाई होगी, वो तो आपने ग्राफ ऊपर सोचा नीचे कि जाता इस है। साल हुई थी या पिछले 3 साल से हो रही है और अगली साल ना हो, हाँ, तो ना you हो should not तो completely go on the trend also. You'll have to identify बिल्कुल, your interest and resources, as you just said. बिल्कुल सर। So, मतलब, even I believe on that. You should not completely going by the trend is also craziness. ठीक है, trend है, there is something to be kept in mind, but that doesn't mean that you'll choose something which is completely out of your interest, or you'll go, you'll leave with the optional which you already have prepared. इतना जल्दी वो नहीं करना चाहिए. It's a very crucial decision. क्रूशियल है सर, बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शनल में वेरिएशन बड़ा आ जाता है स्कोर का। जीएस में तो 4 लोग ऊपर नीचे मेहनत करेंगे, फिर भी उनके स्कोर बहुत करीब होंगे। बट ऑप्शनल में मेहनत का बहुत क्लियर आउटपुट आपको मिलता है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। कूल. सो ऐसे की लड़ाई, कोविड और उसके बाद वापस से ड्रॉप करना, और फिर इंटरव्यू के अंदर वापस से गड़बड़. हाँ सर, इंटरव्यू का तो मैं थोड़ा, इस बार मैंने क्या किया, मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगा। क्योंकि 135 था स्कोर, रिजल्ट आ गया, उसके 5 दिन बाद प्री था। तो बहुत मतलब मैं, ऐसा लग रहा था मैं अपनी बॉडी में ही नहीं हूँ, मतलब। क्योंकि शौक था। शौक इस बात का था कि 135 नंबर मिल गए। दुख ऑब्वियसली था कि बड़े क्लोज मार्जिन से मिस कर रहे हैं। 5 दिन बाद प्री है, उसका डर था। तो वो प्री तो पता नहीं कैसे क्लियर हो गया, मुझे भी नहीं पता, मैं बस दे के आ गया था। बट उसके बाद फिर इंटरव्यू का मेरे दिमाग में शुरू से ही था इस साल, कि हम्म. इंटरव्यू में मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या इशू है कि 135 कोई देके गया। बेसिकली 135 मीन्स कि दे हैव कंप्लीटली रिजेक्टेड यू, कोई सूटेबिलिटी आपकी है ही नहीं है फॉर सिविल नहीं सर्विसेज। नहीं, तो ऐसा भी नहीं है. अब मेरा असेसमेंट यही था कि कुछ तो गड़बड़ है मुझ में, कि जो मैं कर रहा हूँ, तो वो सेल्फ डाउट भरा रहा पूरा साल। तो इस बार फिर मैंने मिरर टॉक काफी किया, जिसमें मैं कांच के सामने बैठ के कम्युनिकेट करता था। मैंने ये रियलाइज किया कि मैं बहुत शाय और रिजर्व हूँ, तो उसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि जैसे मेरे को जामा मस्जिद और रेड फोर्ट घूमना था, तो मैंने मैप, गूगल मैप्स बंद कर दिए, और मैं लोगों से पूछते पूछते गया कि यहाँ से कैसे जाना है, वहां से कैसे जाना है। बिकॉज आई हेट इंटरेक्टिंग विद टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स इन पीपल. जनरल। हाँ, तो वो मैंने सोचा कि उसको ऐसे ओवरकम करते हैं। फिर प्रेशर का मुझे लग रहा था कि मे बी आई सकम टू प्रेशर लास्ट ईयर। तो इस बार मैंने यूपीएससी मेंबर्स के प्रिंट आउट निकाले, फोटोज सारे सारे, और छो उसको साइड खड़ा लगा दी कर उनको दिया अपने सामने. सेमी सर्कल में, और कुर्सी लगा के फिर आधा घंटा इंटरव्यू सिमुलेट किया। तो गुड. मास्क वगैरह लगा के, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के, बिकॉज आई फेल्ट कि एक फेमिलियरिटी आ जाती है। अब जैसे स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, उनके फोटो से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ पहले भी, तो एकदम स्ट्रेंजर नहीं है वो, तो वो खुलने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसा बहुत कुछ किया, लकीली ये वो वर्क ये कर गया वाला अगेन। नया है मुकुंद. अब हाँ सर, कई लोग अडॉप्ट करेंगे इंटरव्यू के अंदर, खड़ा कर देंगे सब डमीज को, एंड डमीज विल बी द यूपीएससी मेंबर, एंड ग्रेट ग्रेट किसी के लिए ग्रेट. वर्क कर जाए तो बहुत अच्छी बात है सर, इससे व्हाई नॉट, खुशी की व्हाई बात नॉट. तो है ही नहीं। तो You were यही you था were सर, a little बाकी। reticent. कुछ भी नहीं था. You simply, your nature was that you were a little reticent, and you were, uh, I'll say you were a little more serious about things. बस और कुछ नहीं था. हाँ सर, वही है। और बाकी एक चीज मैंने रियलाइज की कि वो इंटरव्यू का जो 20-25 मिनट है, उसमें कॉन्वर्सेशन को कैरी करने का ओनस आपके ऊपर है, ना कि उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास तो 2,500 कैंडिडेट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको ही जो है आगे बढ़ के अपने बारे में बताना होगा। 20-25 मिनट में अपनी पर्सनैलिटी दर्शानी होगी। अगेन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज। हो सकता है आप 10 क्वेश्चन भी गलत दे दो वहां पे, बट if you come across as a personality who is genuine, who is actually willing to work in civil services, and who is intelligent to an extent, तो वो
you have good chances to score well. ये मेरा असेसमेंट है 2 साल में इंटरव्यू का. Smartness and the way you react to the situation or react to the question. Your reaction is more important rather than the knowledge. बिल्कुल बिल्कुल. Reaction ही सब कुछ है. लोग वहीं फंस जाते हैं. Overtly, the people, sometimes I've seen very good, diligent people who have done wonderfully well in mains, और वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे कुछ रटा के स्क्रिप्ट बस भेजा हुआ है. They get हाँ serious. सर. They get kind of, they get very very mesmerized by the occasion, और वो होता भी है. तो एक बच्चे के लिए अचानक से आना, पूरा पैनल फेस करना. And बिल्कुल one सर. more thing happens is in our preparation in this UPSC cycles, आपका इंटरेक्शन कम होता जाता है. आप कट ऑफ होते जाते हो, आपको रियलाइज भी नहीं होता. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन कम्स अ ओकेजन जहां पे आपको अब जाके फ्रीली बोलना है. तो दैट ब्रिज आल्सो यू नीड टू कई बिल्कुल लोगों के सर. लिए बहुत आसान होता है, कई लोगों के लिए ये छोटी सी चीज भी बहुत डिफिकल्ट होती है. मुश्किल हो जाता है. वही सर. तो उस पे थोड़ा सा वही वर्क इंटरव्यू की तैयारी में मजा बहुत आता है, बट थोड़ा सा आपको अ, एकदम सिलेबस अप्रोच से बाहर निकल के थोड़ा सा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, बस ये है. हाँ, द मोस्ट फन स्टेज इज इंटरव्यू ओनली. बिल्कुल नो बिल्कुल सर. डाउट. बिकॉज यू मेरा ये क्लियर टू मानना है कि स्टेजेस. यूपीएससी जो है आपको रिवॉर्ड करता है. प्री की प्रिपरेशन सबसे बोरिंग है. फिर अगर आप प्री क्लियर कर लो तो आपको मेंस पढ़ने का मौका मिलेगा, वो रिलेटिवली इंटरेस्टिंग है. आपको आंसर राइटिंग मिलता है, एसे में भी मजा आता है, एथिक्स में मजा आता है. फिर उसको क्लियर कर लिया तो आपको और रिवॉर्डिंग जर्नी मिलेगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जिसमें अगर आपका नहीं भी होता है सिलेक्शन तो आई फील कि बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है. आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, विच इज सो रेयर. आप आप नहीं तो निकलते जाते हो, आपकी दुनिया चलती जाती है आगे आगे. यू ट्रू नेवर ट्रू. रियली गेट द चांस टू असेस योरसेल्फ एज अ पर्सन. तो वो इंटरव्यू वो रिवॉर्ड देता है. Interview is a stage of introspection which definitely improves you as a person. Whether you बिल्कुल succeed or fail in the interview or the exam, that doesn't matter. You will come out as a different person for sure if you have given the interview and crossed these stages. ये तो for sure है, बिल्कुल. definitely. बिल्कुल. So मुकुंद की जनता को क्या एडवाइस है, मतलब एमपी की जनता को या भोपाल वालों को, कि भैया क्या करना चाहिए? सर, एक तो सफलता का रिलेटेड मैं यही बोलूंगा कि मेहनत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा फिर किस्मत भी इंपॉर्टेंट है. तो वो चीज आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि तीनों के मिश्रण से मिलती है सफलता. दूसरा, मेरा ये मानना है कि एक कोट है रॉकी फिल्म से, इट इजंट अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हिट, इट इज अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. तो लाइफ में आपको चैलेंजेस मिलेंगे, आपको मौके पड़ेंगे, आप फ्लोर पे गिर जाओगे, बट द थिंग इज कि आप कैसे अपने आप को डस्ट अप करते हो, आप वापस उठते हो और लड़ने के लिए तैयार होते हो. हो सकता है जीत मिले, नहीं मिले, दैट इज नॉट एग्जैक्टली इन योर कंट्रोल, बट लड़ना आपके कंट्रोल में है. आप वो कर रहे हो तो यू आर डूइंग वेल. Resilience and facing the going through the journey with hard work, patience and luck, as you said. और फिर जो होना है वो होगा. मतलब you can't keep worrying बिल्कुल about the result 24/7. वो करना भी नहीं चाहिए. बिल्कुल. नहीं करना चाहिए सर, एंजॉय नहीं कर पाते नहीं तो लाइफ. Great, great, great. So चलो कुछ और दूसरी चीजें भी पूछते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद नेटफ्लिक्स मूवीज. क्या क्या देखा पिछले कुछ टाइम में? सर, मैंने तो बहुत कुछ देखा. मुझे शौक है काफी फिल्म मेकिंग का भी और शोज देखने का भी. तो मैं तो सोच रहा हूँ इनफैक्ट एस्पिरेंट्स के लिए एक बना के लिखूं मूवी लिस्ट, और ये सब जो है शो लिस्ट, कि कौन से प्लीज देखने डू चाहिए. दैट. अगर अगर हमें भी मेल करोगे तो विल ऐड दैट इन द डिस्क्रिप्शन कि हाँ, दीज ओके आर सर. द सिविल सर्वेंट मूवीज. ओके सर. क्योंकि सर अगेन, कई देखिए सबके लिए अगेन अलग अलग चीजें वर्क कर सकती हैं. कुछ लोगों के लिए कट ऑफ करना एकदम वर्क करता है, गुड फॉर देम. मेरे लिए ये मानना था मेरा कि आई डेंट नो कि यूपीएससी साइकिल कितना चलेगा. अब मैं कट ऑफ होकर बैठ जाऊं, अपने सारे जो मेरे स्कूल के इतने प्राइज्ड फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली इतनी जो प्यारी है, उससे मैं कट ऑफ होकर बैठ जाऊंगा, तो फिर मैं लॉस्ट टाइम को कैसे कवर करूंगा. मेरे कितना भी सफलता मिल जाए, वो चीज तो इररिप्लेसेबल है. तो मैंने कट ऑफ ऐसे कभी नहीं किया. सेम गोज फॉर मूवीज एंड शोज. मुझे चाहिए कि मैं पढूं, तो उसके बाद फिर मेरे को कुछ रिवॉर्ड के फॉर्म में ही देख लो आप उसको. तो मैं सब टाइप के शोज देख रहा था, सारे जॉनर के, ड्रामा हो, थ्रिलर हो, सिटकॉम्स हो, सब देखे हैं मैंने. तो और काफी कुछ सीखने को मिलता है. जैसे कई सारे कोट्स अगर मैं बोलता हूँ तो जनरली लोग बुक से बोलते हैं, मेरे सारे कोट्स मूवीज और शोज से ही निकलते हैं. तो रॉकी. और मैंने ऐसे में मैंने यूज किया था रॉकी वाला कोट तो पहले ऐसे में अपने. हाँ, तो वही वही.
तो सीखने को मिलता है और आप इंजॉय करते हो अपनी हॉबीज को, एकदम कट ऑफ करना भी ठीक नहीं रहता है फिर। ग्रेट। और डाइट और स्लीप? स्लीप भी सर नॉट 8 घंटे से कम नॉट तो फॉर कभी नहीं यूपीएससी, सोया। इन जनरल ये होना चाहिए यार। हाँ सर बिल्कुल। अब ये सब चीजें स्किप आउट करके आप अपना हेल्थ, अगेन हेल्थ अफेक्ट तो होती है यूपीएससी से। मेरे को बैक इश्यूज हो गए थे, मेरे को नेक इश्यूज हो गए थे बैठते बैठते। तो आंखें मेरी ड्राई आइज का मेरे को प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने फिर डिजिटली पढ़ना बंद कर दिया था। तो वो तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, आप पढ़ोगे तो लोगों को चश्मा लग जाता है, तो देर इज अ रीजन फॉर दैट। लकीली मुझे नहीं लगा। बट स्टिल आप अपना एकदम सोना बंद कर दोगे, डाइट बंद कर दोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हम्म। और वो चीज आपके फिर एग्जाम में भी आपको अफेक्ट करेगी। सिर्फ लाइफ को भी अगर आप नहीं कंसिडर कर रहे हो तो एग्जाम का ही सब कुछ सोच के चल रहे हो, तो उसके लिए भी आई वुड से कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस टू मच ऑफ ग्लोरिफिकेशन, और ये टॉपर्स और रील और प्लस इवन द एग्जाम, यूपीएससी यूपीएस, ठीक है, देयर इज अ पब्लिक सर्विस कमीशन, देयर इज एग्जाम, एवरीबॉडी गिव्स इट, बट व्हाट इज योर कमेंट्स ऑन द काइंड ऑफ ग्लोरिफिकेशन व्हिच इज गोइंग ऑन? सर इशू है, डेफिनेटली ग्लोरिफिकेशन का इशू है। और अगेन आई फील कि जब लोगों को रियलाइज होने लगेगा कि सिविल सर्विसेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, सिविल सर्वेंट्स का एक्चुअल जॉब क्या है, उनको क्या करना चाहिए, ये ग्लोरिफिकेशन अपने आप थोड़ा कम होने लगेगा। ये हो कोई जाता है, दो ऐसी तीन जॉब्स नहीं साल है। बाद थोड़ा कम हो जाता हाँ है। हाँ। तो वो मतलब लोगों को ये रियलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विस एट द एंड ऑफ द डे इज अबाउट सर्विंग पीपल। ठीक है। राइट। तो वो ऐसा नहीं है कि पावर की पोजीशन पे आप बैठ गए तो आप कुछ भी करोगे। और लोगों को भी ऐसा लगता है कि अरे अब तो ये हम मतलब पॉलिटिकल एजेंट्स नहीं है, हम सिविल सर्वेंट्स हैं, हम गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, हमको डिफाइंड रोल्स है हमारे, हमें उन्हें वो करना है। तो अब सर ग्लोरिफिकेशन का इशू तो है, और उसमें इनफैक्ट मैं खुद भी बोलूंगा कि मैं गिल्टी हूँ। अभी मैं गांव गया था, तो वहां पे बहुत लोगों से मेरे को मिलना मिला और बहुत लोगों ने प्यार दिया। तो थोड़ा सा मुझे भी वो गिल्टी प्लेजर टाइप था, अच्छा नहीं, भी लग so रहा था, बट no, देन no, आई फेल्ट so कि there is a difference, Mukund. देखो, this the civil services holds a great status in the society. Now that जी status will get respected, honored, and people will react once you achieve that status through success in the exam. That is one thing. And then another thing is uh, purposive glorification. That is what I was pointing towards. That should be avoided. That's a duty of people like ours, platform like ours, channels, and obviously the selected candidates. It should go hand in hand. That glorification should be subdued as much as it can be. जी सर, वो थोड़ा कमर्शलाइजेशन वाला पॉइंट तो है ही ऑब्वियसली। एज अ नहीं, चलो, सिलेक्टेड थोड़ा कैंडिडेट आई बहुत थिंक। शायद होगा रहेगा, बट वो ओवर्ट ग्लोरिफिकेशन की तरफ इज व्हाट आई वाज पॉइंटिंग, यार वो थोड़ा सही नहीं है, मतलब। नहीं है सर बिल्कुल। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आई थिंक ये ड्यूटी है कि जहां से आपने हेल्प ली है कोचिंग में, आप वहीं पे जाओ। वहां पे भी ग्लोरिफिकेशन तो एग्जैक्टली आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो कोचिंग का के पास रहते हैं सारे राइट्स। बट एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि आप वहीं पे जाओ, वहीं पे इंडोर्स करो जहाँ पे आपको हेल्प मिली है। तो वो एक पॉइंट आई थिंक एज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारी ड्यूटी बन एंड जाती सी है। वन मोर थिंग, ठीक है, देयर विल बी सम एडवाइजेस, मेंटरशिप कोर्सेज टेकन बाय यू। अब तुम्हारी 6 साल की जर्नी, यू हैव टेकन फाउंडेशन, यू हैव टेकन टेस्ट सीरीज, यू हैव टेकन मॉक। सो वही। come on, there will be so many things and inputs which have come in poured in. ठीक है, कुछ क्रूशल होंगे, कुछ क्रूशल स्टेजेस पे होंगे, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, but it is you who have done it. It is not the outside world which has done it. You've taken few advices and you've walked on. That is how it has been. So बिल्कुल contribution रह सकता है किसी का कुछ minute here and there, but it is ultimately the candidate who will have to do. ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये भी एक रॉन्ग मैसेज है कि सर हम उन सर से मिले और फिर उन सर ने ऐसा बता दिया और हम चेंज हो गए, और मतलब ठीक है, काफी चेंजेस आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, बट उस इस मैसेज में क्या होता है, सर को ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि यार थैंक यू कैंडिडेट ने बोला, बट क्राउड जब इस मैसेज को देखती है ना, तो वो ऐसे परसीव करती है कि जैसे ओ ये सर की वजह से हो गया है, and that is never the case, right? So that message I also want ki should go with thousands and lakhs of candidates ki it is you who will have to do. There can be eklavya also, मतलब it's not required कि आपको कोई टीचर मिले ही मिले, आप दूर से बैठ के भी सीख सकते बिल्कुल हो, यूट्यूब है, बिल्कुल। फ्री एग्री। रिसोर्सेज है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। एंड यदि मेंटरशिप वगैरह कुछ चाहिए, ऐसा कुछ कुछ और कोर्स चाहिए, आप साइड में कुछ कुछ
ब्लॉक कोर्सेज छोटे मोटे लेते रहो, तैयारी करते रहो, और एक आदमी के, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की सक्सेस में, इन एनी कैंडिडेट सक्सेस, दे विल नेवर बी अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल चैप, और इट विल बी मल्टीपल लेयर्स, कई जगह से, फैमिली, पीयर, स्कूल, कॉलेज, क्या क्या सीखा, ऑब्जर्व किया. सो द जर्नी हैज वेरियस लेयर्स टू इट, एंड इट शुड बी क्लियर. बिल्कुल सर, बिल्कुल सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। और टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो मैं ओआरएन की 70% कोचिंग के स्टूडेंट हूँ किसी ना किसी उसमें। तो अब वो तो है ही, बट जैसा आपने बोला, कुछ मेंटर्स बहुत क्रूशियल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं और उनको क्रेडिट मिलना भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है जैसा आपने बोला कि सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं का है। हाँ, स्टूडेंट को अपने मतलब हिसाब से करनी पड़ती है चीजें। I intentionally am trying with Topper's talk that I'm talking in this, the way we are conversing, unscripted, free flow, frank, and मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि यार जो आपको मन में है बोलो, और this good message, the message that you can do it on your own, ये over mystification, glorification, इसको थोड़ा सा deglorify करने की जरूरत है, and people should prepare, and things should be debunked. Unnecessary जो चीजें चल रही हैं उनको थोड़ा debunk किया जाए, is what we were trying. बाकी जी यस, सर। हम भी कल्परेट होंगे, कई लोग हमको भी बोलते हैं, ओ माय गॉड यू, बट ठीक है, एटलीस्ट अ ट्राई इज देयर फ्रॉम आवर साइड, इज व्हाट आई कैन से, एटलीस्ट अ सिंसियर ट्राई. बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये काफी वो अच्छे बहुत जरूरी इनिशिएटिव। है. जी सर। एक्चुअली क्या होता है, वो जो कहीं दूर बैठा एक बच्चा है ना, ड्रीम करना सबका हक है, नो डाउट, एवरीबडी शुड ड्रीम, गो एस्पायर, वर्क हार्ड, बट समटाइम्स इट्स गेटिंग सोल्ड. दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग. और सेल्फ असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट करना अपन ने डिस्कस किया, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती. कई बार टाइम, अग्रीड। पैसा बहुत वेस्ट हो जाता है, एंड दोज इयर्स डोंट कम बैक. So there should be a balance. You have to take the risk, you have to take the call. Should be a very, very cautioned call, and then you should go ahead. जी सर, बिल्कुल। Cool. तो तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सर, खाने में एक्चुअली मैं कुक करता भी हूँ, तो अरे वाह. काफी कुछ पसंद है। ब्रेकफास्ट तो हम भोपाल वाले सब पोहा जलेबी पसंद करते हैं। हाँ, पोहा बाकी जलेबी. बाकी सर, लंच डिनर में पनीर, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो पनीर से रिलेटेड डिशेस जनरल। चलो, कूल कूल. तो अब बहुत सारा पनीर और जलेबी और पोहा खाओ और चिल मारो. एंजॉय बिल्कुल दिस पार्ट ऑफ सक्सेस का के बाद वाला ये जो टाइम है, इट्स वेरी प्लेजेंट, without pressure. You should enjoy this time. Or I guess this बिल्कुल। time Labasna's training is starting early, जी सर, 31 जुलाई को है ज्वाइनिंग। so that's around the corner. And happy birthday to you in advance. थैंक यू सब सो लोगों मच को सर, बता थैंक यू देते हैं सो मच। 11th को है. And we are जी सर। recording this on 10th. चलो, on this note we'll end it.